अभी एक और डिलेमा ये रहता है कि लाइक वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क एंड साइट, तो आप ज्यादातर प्रेफरेंस वर्क ऑन साइट को देते हैं, बट जो वर्क फ्रॉम होम है उसको मतलब मैनेज कैसे करते हैं? उन्हें एक स्किल कौन सी कॉमन है जो हर इंसान को डेवलप करनी चाहिए? कोडिंग का बोलते हैं बट स्टिल अच्छे कोडर्स इंडिया में अभी भी कम है। आपका क्या कंसर्न है इस पर? Managing so many people in the office. So what is the parameter that on which you are taking people into your company? Hey, welcome to the Folks of India. Today, it's my pleasure to invite Mr. Dinesh Panchal, who is founder and CEO of DexBytes. So, today, let's dive into the life of a person who has spent 20 years in the software development and see how this industry is actually working. So, thank you so much, sir, for being part of our show. It's my pleasure. Thank you for inviting me. Yeah. So, sir, before we move on to the aspect of software industry, I want to know from scratch, like how you get into this arena. Yeah. I was in 11th when I got interest in software development. Okay. Basically, that time computer was working with a floppy drive. That time I got interest, and then I pursued that interest and got into this software industry. Okay. So, sir, like, have you done some job also, or started this company, or? Yeah, I worked in a software development company and started my career as a junior developer, trainee, and then I got promoted as a senior developer, then trainee, project manager, and then eventually I started this company. Okay. So, sir, like today we have got a trend of artificial intelligence and all these things. So, how this is actually affecting the software industry? Basically, they are enhancing the productivity, and where we can earlier we have been used to devote more time in thinking, or if we have thoughts, then writing or converting those thoughts. Okay. AI is helping to convert those ideas into written text, when you are doing SEO, or you have some job descriptions, or you want to write some podcast document. AI can help you to write those without any grammatical mistakes. So that is basically advantage we can take off in AI. Okay. So, sir, like as I come to the office and I saw like you are managing so many people in the office. So, what is the parameter that on which you are taking people into your company? Initially, I take first is a qualification. Yeah. And then they have logical mind. They can think of to solve the problems. Are they ready to accept some logical challenge? If they are fulfilling those criteria, we welcome them. And later on, to bring in a core team, I think I check that are we like-minded people? Are we thinking in a similar way? If we are, then I bring them or grow as a core team member and bring them. And sir, to that core team member, like integrity should be the concern. Of course. Okay. Integrity is definitely, because we are working in a software development where we sign NDA, non-disclosure agreement, and we cannot disclose client details and this. So definitely, when somebody is in a core team, they know confidential information about the company, about the clients, and everyone is obliged that bounded that we are not going to disclose any details to anybody. Okay. And sir, there is a common dilemma that all of the youth are really concerned about कि like कोई है जो skills को promote करते कि like you have to just develop good skills, और कोई है जो बोलते कि like you have to complete the education. So इन दोनों चीज में if you got resume of the same level, to whom you will give the preference? First, we'll definitely check the education qualification. Is person belongs to this education field or not? Because somebody can take skills by learning software technology in a 5 months or 6 months, but conceptual thoughts or conceptual training cannot get in a 5 months or 6 months. Anybody can learn a technology in a 5 months or 6 months, but the concept, those can be taught or learned in a college or textbooks, and that's why the degree are important, because in a 5 years they are learning about concepts, and those are very fundamental requirements. Because on the basis of that you can think. जैसे कि हम बोलते हैं कि सोच पे हमारा सब कुछ निर्भर करता है, तो मेरी सोच अगर
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, तो अगर मैंने कोई टूल सीख लिया 3 महीने में, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स नहीं बनेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मुझे कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट कॉलेज में अपने सब्जेक्ट को पढ़ के ही मिलेंगे आपको। ओके, एंड सर लाइक यू जस्ट टोल्ड कि 3 महीने में ज्यादा वो नहीं सीख सकते हैं, बट स्टिल जैसे अभी हम लोग हैं, हमें कुछ कॉलेज के प्रोजेक्ट्स और वो सब चीजें मिलती हैं, तो जो अगर उस फील्ड में है तो अब क्या कर रहे हैं कि लाइक कोई भी जो डेटा रहता है हम रिसर्च करके चैट जीपीटी से कंटेंट लेके वी जस्ट पुट इनटू द यूज, और हम सोचते हैं कि हम स्मार्ट है, बट डू यू थिंक दैट वो टाइम भी है, एक शॉर्ट ग्रेटिफिकेशन है कि मेरी एक पर्टिकुलर छोटी सी प्रॉब्लम है और मैंने उसको सॉल्व कर दी, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म में वो चीज कॉपी पेस्ट करके या छोटा सा प्रोजेक्ट बना के नहीं होने वाला है, क्योंकि रियल टाइम के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक्चुअली सेल होते हैं और जो क्लाइंट जिसके लिए पे करने को रेडी है, बड़ी कंपनियां जो एमएनसी ये हैं, वो आपके कॉपी पेस्ट वाले सॉल्यूशंस को नहीं देंगी, क्योंकि वो तो मार्केट में अवेलेबल है वैसे ही, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो एक पर्टिकुलर मेरे को डिग्री लेना है या मेरे को वाइवा मेरा क्लियर करना है कॉलेज का, इसलिए मैंने क्लियर कर लिया, दैट इज ओनली that particular gratification it is solving, but it's not helping you in a career. Okay. वो आपकी कभी कैरियर में हेल्प नहीं करेगी। Like illusion ही है कि we are using technology smartly. बिल्कुल। Okay. जैसे कि मैंने WhatsApp यूज कर लिया, Facebook यूज किया या Amazon यूज किया, और कोई बोल दे कि अच्छा ये जो आप Amazon आपके प्रोडक्ट्स को आपने नोटिस किया होगा कि आप जो सोचते हैं Amazon वही प्रोडक्ट आपको दिखाने लग जाता है सेल करने के लिए, कैसे करता होगा? अब ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन अगर बनाने की बात आएगी तब कैसे बनाएंगे उसको? हाँ सर, एल्गोरिथम को मतलब देखना आसान है। हाँ, तो रिजल्ट तो दिख रहा है, लेकिन उसको बनाएंगे कैसे? तो ये इंजीनियर की सोच है। लेकिन इंजीनियर अगर कहें कि एक इंजीनियर 5 साल का कोर्स कर रहा है पूरा, और एक ने PHP सीख लिया 3 महीने में और बोल रहा है मैं भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो एजुकेशन हैज गॉट इट्स ओन सिग्निफिकेंस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, दैट इज अ कोर। आपका कोर सही नहीं है तो ये 3 महीने की ट्रेनिंग कोई काम नहीं, हेल्प नहीं करने वाली है। ओके, एंड सर एज यू गॉट द 20 years ऑफ जर्नी इन दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इफ आई कुड आस्क यू द बिगेस्ट प्रोजेक्ट दैट यू हैव वर्कड अपॉन, सो वो कौन सा है? फिनटेक के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, क्योंकि हमारा निश फिनटेक में है। हम पिछले 4-5-6 साल से फिनटेक में कर रहे हैं, तो हम एक कंपनी के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं फिनटेक की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो वी हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years, और 3 साल में हमने उसको लॉन्च किया। स्टिल देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स वी आर वर्किंग, सो आप समझ सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट 3 साल से बन रहा है on a single project. On a single project, and on that we have a 8 team members team. Okay, so they are all लोग focusing. 3 साल से काम कर रहे हैं। Okay. So sir, like you have got a good manpower, so आप उन्हें कैसे एक हार्मनी में और सिम्फनी में रखते हैं कि like जैसे स्मार्ट लोग हैं, so how you make them work together? बड़ा डिफिकल्ट भी है ये, अच्छा क्वेश्चन भी है, क्योंकि चैलेंज होते हैं, स्मार्ट पीपल एक साथ काम करना नहीं चाहते। लेकिन एक थ्योरी है सिंपल सी, A² + A², अगर 2 स्मार्ट पीपल करेंगे काम तो क्या होगा, 2A² बन जाएंगे। और वहां पे एक पीपल मैनेजमेंट स्किल वाला, जैसे कि मैं पीपल मैनेजमेंट में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो मेरा काम है कि ए को दोनों को ब्रैकेट में लाना एक, तो ये ऑफिस है, इस ब्रैकेट में आ गए A + A और होल स्क्वायर कर दिया, तो रिजल्ट मिलेगा मुझे A² तो मिलेगा, B² भी मिलेगा, 2A भी मिलेगा, तो दैट इज एक्स्ट्रा फॉर अ टीम। सो दैट इज द बेसिकली विन-विन सिचुएशन। हम उनको दोनों को बताते हैं कि ये साथ में काम करने का ही है। एडिशनली आप अलग अलग 2 एक्सपर्ट लोग काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक साथ काम करते हैं तो हमको ये डबल एडवांटेज मिलते हैं, एंड दैट दोनों के लिए विन-विन हो जाता है। ओके, सो सर लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट योर बिग प्रोजेक्ट्स, बट ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है कि जिसमें टीम भी एंथुसियास्टिकली लगी थी अचीव करने में? ऐसे बहुत सारे, जैसे फिनटेक जिसका मैंने अभी आपको बोला कि 3 साल से हम काम करते हैं, तो फिनटेक में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक होता है PCI कंप्लायंस, जो कि बहुत क्रूशियल है, और वर्ल्ड की कुछ ही एजेंसी जो होती हैं उसको सर्टिफाइड करती हैं, और उसके लिए काफी मतलब ऑलमोस्ट 100+ टेस्ट क्लेरिफाई करने पड़ते हैं एप्लीकेशंस के सिक्योरिटी की टर्म्स। ओके, जैसे कि अगर कोई पेमेंट गेटवे है तो आप ऐसा नहीं कि कोई भी पेमेंट गेटवे पे ट्रांसफर पेमेंट करें, तो वो हमने सर्टिफाइड किया हुआ एप्लीकेशन को। सो अगर वो जो हमारी फिनटेक की एप्लीकेशन है PCI सर्टिफाइड है, जिसकी की कॉस्टिंग ही ऑलमोस्ट $40,000 फीस है। ओके, सो अगर आपने टेस्ट फेल हो गए तो आपके $40,000 गए। ओके, सो लाइक सो सर इसमें तो लाइक मेंटल ट्रॉमा भी काफी रहा होगा टीम में भी, कि लाइक सो उसे कैसे मैनेज करा था?
हमने उसके लिए 2 दिन पहले टेस्ट किए उनके पास जाने के पहले, क्योंकि उनके इंटरव्यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी प्रोसेस होती है। तो उसके पहले हमने सिक्योरिटी के जो जितने काम है, करीब हमको 6 महीने लगे सिक्योरिटीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और इम्प्लीमेंट करने में। तो टीम के लिए भी नया था कि हाँ हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि बेसिकली जितने भी डेवलपर्स हैं, कंपनी होती है, छोटी कंपनी है, वो नहीं करती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, सिंपल बनाते हैं एप्लीकेशंस और जाती है। लेकिन ये है जो बैंकिंग लेवल की एप्लीकेशंस है, वो जहाँ पे कि आप पैसे ले रहे हो, रख रहे हैं पैसे, तो बैंक की एप्लीकेशन बनाना जैसा है, सिमिलरली हमने वो फिनटेक की एप्लीकेशन बनाई है। इजी अगर अपन समझना चाहें कोई तो बोल सकते हैं कि बैंक की ऐप को कैसे सिक्योर करेंगे, तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो हमने इम्प्लीमेंट की। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट सर। थैंक यू। एंड पांचाल सर, जिससे अभी एक और डिलेमा ये रहता है कि लाइक वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क इन साइट, तो आप ज्यादातर प्रेफरेंस वर्क ऑन साइट को देते हैं, बट जो वर्क फ्रॉम होम है उसको मतलब मैनेज कैसे करते हैं? वो बहुत कॉम्प्लेक्स है उस चीज को मैनेज करना, कि लाइक टीम आपके पास उस टाइम पे नहीं होती है, आप उन पे नहीं नजर रख पाते हैं, तो फिर उसे आप कैसे मैनेज करते हैं अगर किसी को देते हैं तो? ये ट्रस्ट का है, क्योंकि टीम जब मेनली हमारी जो कंपनी है और हम जो है पीपल सेंट्रिक ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे, और डेफिनेटली जो टीम मेंबर है पार्ट टीम मेंबर का, वो वर्क को प्रायोरिटी देता है। तो अगर वर्क फ्रॉम होम का भी जरूरत लगती है तो हम उसको वर्क फ्रॉम होम देते हैं। और जितने भी टीम मेंबर हैं, आई थिंक मैं ज्यादा लकी हूँ उस मामले में कि हमारे टीम मेंबर सारे ऐसे हैं कि जो ईमानदारी से सारा काम करते हैं, तो हमको कोई मैनेज की ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती कि हमको किसी को फॉलो अप करना पड़ रहा है। ओके, अच्छे से दे आर सेल्फ ड्रिवन, या सेल्फ मोटिवेटेड हैं या सेल्फ ड्रिवन है उस काम को करने के लिए। ओके, अब ये हुआ हमारा केस में से, हाँ, एक पापा बनने वाले थे और वो रतलाम से हैं, तो हमने उनको वर्क फ्रॉम दिया, तो उनकी डिलीवरी हो गई बढ़िया आराम से, तो फैमिली को भी उन्होंने टेक केयर कर लिया आराम से, और उन्होंने काम को भी हैम्पर नहीं किया, दोनों चीजों को उन्होंने अच्छे से मैनेज किया। सो दैट्स ग्रेट थिंग, दोनों का एडवांटेज भी है। यस सर। एंड सर आपका ही मतलब इतना फेस से इतना फ्रेंडली लगता है कि लाइक जो एम्प्लॉयज है वो ऑलरेडी मोटिवेट रहते हैं, उनकी लाइक आपके साथ बॉस वाली फीलिंग है सच, वो इंटिमिडेटिंग वाली फीलिंग नहीं आती है, लाइक सो कॉल्ड बॉस। सो सर, अगर जैसे सारे जो यूथ हैं फॉर एग्जांपल इंस्पाइट ऑफ कोई से भी निश के हों, उन्हें एक स्किल कौन सी कॉमन है जो हर इंसान को डेवलप करनी चाहिए कि जो उनके करियर ग्रोथ में जो एक जनरलाइज्ड है काम आएगी? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती हैं और लॉजिकल थिंग्स, कि कुछ भी काम करेंगे लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आनी है, आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, नजरिया जो है, तो लॉजिकल थॉट से आपके वो जो है, और रीजनल थिंक ये होनी चाहिए आपकी, जो कि आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज हो, आप अगर कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तब तो अच्छी बात है। अगर आप कॉमर्स में जाना चाह रहे हैं तो वहां पे भी लॉजिकल थिंग्स तो वहां पे भी आनी है, हर जगह पे लॉजिकल माइंड चलना ही चलना है। एक आप सो व्हाट आई कैन डू एक्चुअली टू इम्प्रूव माय लॉजिकल रीजनिंग जोन? उसके लिए सिंपल सा है कि अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि अगर ये कोई चीज है किसी ने बताई है, तो अपन ज्यादातर ये तो पता कर लेते हैं कि व्हाट, बट वाई नहीं पूछते हैं हम। किसने बोला कि ऐसा कर लो, तो हम वो करने लग जाते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछने लग जाए कि वाई, तो ऑटोमेटिक कुछ आंसर्स अपने को मिलेंगे और वो अपने को हेल्प कर देंगे कि मैं उससे जाऊं या ना जाऊं। तो वो एक लॉजिकल का पार्ट है। वाई है ना, मेरे को यहाँ से मार्केट जाना है, वाई, या मुझे ये बायोलॉजी पढ़ना है, वाई आई शुड रीड बायोलॉजी, वाई नॉट मैथ्स। तो अगर वो क्वेश्चन अगर मैंने वाई पूछा तो ऑटोमेटिक सामने वाला उसका आंसर देगा, और मेरा लॉजिकल माइंड जो है या मेरा माइंड जो उसको इवेल्युएट कर लेगा कि मैं उसके लायक हूँ या वो सब्जेक्ट मेरे लिए है या नहीं। तो वाई पूछना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यस सर। एंड सर लाइक एक डार्क साइड भी है कि लाइक जो जितने भी यूथ हैं, आपने इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कि लाइक आपको एक कौन सा पॉइंट है जो डिसअपॉइंट करता है हर मेजोरिटी ऑफ यूथ्स में जो आप अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं? उनका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत वीक है। हाँ, तो सब्जेक्ट नॉलेज मतलब क्या कि आपने 5 साल इंजीनियरिंग का कोर्स किया, BE किया, या किसी ने BTech किया, लेकिन आप BTech के बाद आप 5 साल जो पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपर्टीज मिडिकोर लेवल की भी एक्सपर्टीज नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फिर मैं किस बात का इंजीनियर हूँ सर? लाइक एक्सपर्टीज इन द सेंस लाइक अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको बेसिक आपके कॉलेज में इंजीनियरिंग में C++ पढ़ाया जाता है, जावा पढ़ाया था, तो किसी के लिए जावा होता है, किसी के लिए C++।
आप सी पढ़ के आए हैं तो आप सी में आपके पास मास्टरी होना चाहिए कि हाँ मेरे को सी के कॉन्सेप्ट सारे पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, C++ के कॉन्सेप्ट पता है, मेरे को यूज कैसे करना है वो मुझे पता है, क्यों यूज करना है वो मुझे पता है, तो हम दूसरी टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। क्योंकि अगर अपन ये सोचें कि C++ का तो आज कोई यूज नहीं है, जितनी भी वेबसाइट बन रही हैं वो PHP में बन रही हैं या पाइथन में बन रही हैं या मोबाइल ऐप मेरी फ्लटर में बन रही है या रिएक्ट नेटिव में बन रही है, तो मैं C++ पढ़ के क्यों क्या करूं? ऐसा मन में आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए शायद हो सकता है कि कॉलेज के बच्चे ना पढ़ते हैं। लेकिन C++ या जावा कॉन्सेप्ट को बहुत जल्द सॉल्व करती है, रिजॉल्व करती है। तो अगर आपने कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी में जाएं, कोई चैलेंज नहीं आना लगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी सीखना 15 दिन का पार्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना वो 5 साल टाइम का। ओके, एंड सर यही एक फैसिनेटिंग पॉइंट भी लगता है कि लाइक हमारी एज में हम लोगों को भी इन्वेस्टिंग बहुत फैसिनेटिंग लगती है कि लाइक थोड़े पैसे बचा के इन्वेस्ट करें और उस पे के कांस्टेंट बेसिस पे ROI मिलता है तो खुशी मिलती है और इतना। बट सर जहां तक मैंने ऑब्जर्व करा है कि लाइक कोडिंग का बोलते हैं बट स्टिल अच्छे कोडर्स इंडिया में अभी भी कम है। आपका क्या कंसर्न है इस पर कि लाइक सेम टाइम इंसान कोडिंग या अनरियल इंजन या फिर इन चीजों में इन्वेस्ट कर सकता है? कोडिंग में इन्वेस्टमेंट यानी कि खुद पे इन्वेस्टमेंट करना, वो ज्यादा अच्छा काम है। अगर मान लीजिए मैं 20,000 रुपए बचा के इन्वेस्ट कर भी दूं और उस पर मेरे को 100% ROI मिल भी गया तो उससे मिलेगा मेरे को 20,000 रुपए हो जाता। उस 20,000 में मेरा एक फोन भी नहीं आने वाला कोई अच्छा, और ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, तो उस 100% का क्या मतलब है ROI का? लेकिन अगर उसकी जगह अगर मैंने अपने उस 20,000 को मैंने अपने स्किल्स पे लगाया होता, जो मैं इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ या जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मेरा निश पीपल मैनेजमेंट में है और मैं पीपल मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ रहा हूँ या उसके सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ और वहां पे मैंने 20,000 उसमें इन्वेस्ट कर दिए तो मेरी स्किल्स बढ़ जाएगी। वो स्किल्स मुझे अगले 5 लाख कमाने में हेल्प करेगी। तो अगर 5 लाख का अगर मैं 100% ROI करूंगा तो वो काफी कुछ हेल्प करेगा, बजाय इसके कि 20,000 को मैं 100% पे जाऊं। तो 5 लाख का अगर मैं 10% भी कमाता हूँ तो 20,000 के 100% से बहुत ज्यादा। सो बी पार्ट ऑफ अ बिगर गेम रादर देन छोटे छोटे गेम के गेम में कुछ भी हासिल नहीं होना है। यस सर। एंड दिनेश सर एक और पार्ट ये है कि लाइक बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, ये बहुत बड़ा डोमेन है, इस पे काफी इन्फ्लुएंसर्स है, सब चीजें हैं। सो फॉर बीइंग लाइक मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ 21, सो किस चीज में लाइक मुझे पता है ज्यादा सेविंग और वो सब चीजें नहीं होगी, पर कुछ जो जनरलाइज रूल ऑफ थंब है जो आपने भी ऑब्जर्व करे अपनी लाइफ में कि लाइक अगर फाइनेंस में मेरा ये चीज सॉर्टेड है तो कंपनी की स्केलेबिलिटी और वो सब चीजें स्मूथ रहेगी या इंडिविजुअल लेवल पे भी एक इंसान सक्सीड कर सकता है। मैंने तो अपनी लाइफ में जो किया है वो मैं बता सकता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जो किया है मैंने इन्वेस्टमेंट अपने स्किल्स पे किया। और 10 साल तक मैंने अपनी स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट किया और 10 साल के बाद ऑटोमेटिक जो मेरे को जो चाहिए फ्रीडम या सभी को चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या पैसे चाहिए वो मैंने अचीव कर। स्किल्स मतलब जॉब के साथ ही आपने जॉब वाले स्किल्स नहीं, मतलब जॉब्स के लिए मैं अलग से कुछ नहीं किया। जो मैं काम कर रहा हूँ उसी में मैं एक्सपर्टीज करने गया कि जो मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट है उसी को मैं मास्टर करते गया। तो वो स्किल्स मुझे आज बिजनेस सेटअप करने में हेल्प कर गई। आज बिजनेस सेटअप किया है तो जो फाइनेंशियली मेरे को इंडिपेंडेंस चाहिए थी वो आज मैंने अचीव करी। इसकी जगह अगर मैं 10 साल या आज अगर 2005 से आज 2023 तक जॉब कर रहा होता और अगर मैं अपनी सैलरी से 10,000 रुपये बचा भी लेता तो 10 साल में मैं कितने बचाता? 10,000 रुपये करके, और उसका इन्वेस्टमेंट मिलता नहीं मिलता, कभी मार्केट जा रहा है, लेकिन अगर मेरी स्किल्स है जिस पे मैंने इन्वेस्ट किया है वो कहीं छोड़ के नहीं जा रही है। यस सर। तो मैं कभी भी उस स्किल से अपने परिवार का या अपने जितने भी सपने हैं उन्हें पूरे कर सकता, तो वो उसमें इन्वेस्ट करना और अपने आज भी उस पर करना। सर फाइनेंस को मतलब क्या मैनेज करने के लिए मतलब किन चीज़ों पर ध्यान की, जैसे एक्सपेंसेस वो सब चीज़ें हैं? ये बहुत सारे लोग बोलते हैं पर मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कभी कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपनी इनकम का 5% अपने ड्रीम के लिए रखो, आप अपनी फैमिली के लिए रखो। आप अगर 5% रख भी लिया 5,000 रुपये करके और आपको इमरजेंसी आ गई तो निकल जाएगा। तो लेकिन मेरे दिमाग में क्या सोच रखा था, मैं किस चीज़ में फोकस करता हूँ कि मेरे जेब में ऐसा मत कि अगर मुझे खरीदने की कोई इच्छा है तो मेरे को सोचना ना पड़े कि यार इतने रुपए का है। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, क्योंकि आप कोई चीज खरीद जो सोच रहे हो वो खरीद पा रहे हो। ये आप चाहते हो अल्टीमेटली अगर आपके जेब में या बैंक बैलेंस में अगर करोड़ रुपए है आप उससे कुछ खरीद नहीं पा रहे तो किस काम में है ना? कि आपके पास
पैसे हैं लेकिन हेल्थ नहीं है तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते हो। So health say I just want to jump on another part. Okay, like what do you do exercise regularly? Yeah, I do. So what it's your workout routine? इट्स वेरी नॉर्मल, लेकिन मैं एक्सरसाइज या उससे ज़्यादा अपने खाने पीने को ध्यान देता हूँ। क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो और उसके बाद एक्सरसाइज के बाद वड़ा पाव खा रहे हो, पोहा खा रहे हो, चाय पी रहे हो, तो वो एक्सरसाइज को पूरा खराब कर देती है, कोई काम करनी। मैंने कुछ ट्राई किया, उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, जो हेल्थ है वो फूड से रिलेटेड ज़्यादा है कि आप अपने बॉडी में क्या इंटेक कर रहे हो, उससे आपकी हेल्थ रहेगी। तो मैंने फिर कुछ साल पहले से शुगर बंद कर दी, मैं वाइट शुगर नहीं लेता हूँ, तो वो शुगर बंद कर दी। रात को खाना कम खाना है जिससे कि बॉडी को आराम मिले, सुबह जल्दी उठना है और वॉकिंग करना है, बेसिक कुछ थोड़ी 4-5 किलोमीटर की वॉक। तो खाने पे अपना ध्यान देते हैं और जंक फूड नहीं खाते हैं, और स्पेशली मैंने शुगर से बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे बेनिफिट मिला। शुगर मैंने कम करने से ऑटोमेटिक वजन रिलीज हो गया, और फिटनेस मतलब आपको आलस नहीं आएगा, ऐसा फटीग नहीं लगेगा कि मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ। मैं सुबह 5-5:15 बजे उठता हूँ और रात के 11 बजे सोता हूँ, लेकिन कभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं थक गया हूँ। आपको तो हाँ सर, एक ये वर्क लाइफ बैलेंस का भी बहुत ज़्यादा मिथ चल रहा है कि लाइक बोलते हैं कि 8 घंटे काम करो, 8 घंटे टाइम दो और 8 घंटे सो। सो लाइक अभी जैसे आपने इतनी कम टाइम में इसको जो स्केल करा है, ऑलरेडी बहुत सैचुरेटेड मार्केट है, सो वर्क लाइफ बैलेंस मतलब एग्जिस्ट करती है, सिर्फ एक इल्यूजन एंड एक कंफर्ट जोन है? मेरे लिए तो इल्यूजन ही है, क्योंकि आप बैलेंस कैसे बनाओगे किसी भी चीज़ में? बैलेंस मतलब क्या है? बैलेंस मतलब ये है कि अगर मेरी फैमिली को जरूरत है तो मैं वहाँ पे रहूँ, मेरे काम की जरूरत है तो मैं वहाँ पे रहूँ, या मेरे किसी दोस्त के इमरजेंसी में जरूरत है तो मैं वहाँ चला जाऊँ। दैट इज अ वर्क लाइफ बैलेंस। यही बोलते हैं कि कुछ और है? यस सर, मतलब सर वो वर्क लाइफ बैलेंस पे ऐसा है कि लाइक पर्सनल टाइम उसके लिए अलग निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर कि लाइक जो अपने लिए स्पेयर टाइम है, मूवी देख रहे, पार्टी देख रहे, हाँ, जो मैं करना चाहूँ वो करना है। तो उसके लिए ये वर्क लाइफ बैलेंस तो ऐसी कोई चीज मुझे तो नहीं लगती है कुछ है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि आप अगर अपने काम को प्रायोरिटी देना सीख गए, राइट प्रायोरिटी राइट वर्क को, तो आप डेफिनेटली आप वर्क बैलेंस लाइफ जैसे अचीव कर सकते हैं। हालांकि वो होती नहीं है, लेकिन आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि ऑफिस में काम कर रहे हैं लेकिन घर की प्रॉब्लम को सोच रहे हैं, हाँ, तो वो ना घर का काम कर पा रहे हैं ना ऑफिस का काम कर पा रहे हैं। फिर यहाँ से काम खत्म करके जैसे तैसे जाएंगे, जब घर चले जाएंगे तो ऑफिस के बारे में सोचेंगे क्योंकि वो काम ठीक से नहीं हुआ है, तो कल बॉस बोलने वाले हैं कि यार ये काम तो ठीक से किया नहीं है, अब उसका क्लाइंट बोलने वाला है, वो सब बोलने वाला है। यानी कि आप एक जगह पे नहीं है, जहाँ है वहीं पर रहना है। हाँ, तो अगर मैं प्रायोरिटी सेट कर लेता हूँ कि हाँ मेरी प्रायोरिटी पहले ऑफिस में हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी क्या है? काम है, मैं काम को 100% कर दूँ, इसके बाद मेरा टाइम फ्री है, तो मेरे पास वो काम मुझे फॉलो नहीं करने वाला है। अगर मैंने काम को प्रॉपरली नहीं किया तो काम मुझे फॉलो करेगा, और मैं वही चाहता हूँ कि मुझे कोई भी चीज फॉलो ना करे। अगर मैंने फैमिली को प्रॉपर टाइम दे दिया, जैसे मैंने बोला कि मैं सुबह 6:45 के बाद मेरा टाइम जो है मेरी फैमिली के लिए होता है, 6:45 तक टाइम मेरा है, तो उसमें मैं अपना काम करता हूँ, रीडिंग करना, बुक्स करना, या टुडे आई हैव टेकन सम टाइम ऑफ योर्स। हाँ, यस, मॉर्निंग का, ओके, मॉर्निंग का 6:40 का, यस सर, 6:40 के पहले। तो अब अगर मैं 6:40 के पहले वाला मैं काम अगर मैं बोलूँ कि अच्छा मैं तो लेट उठूंगा 7 बजे, तो और मैं उस टाइम पे बुक पढ़ूंगा क्योंकि मेरे बुक पढ़ने का मेरे को शौक है, मेरे को बुक, सो दैट टाइम इट इज गोइंग टू कॉन्फ्लिक्ट, ओके, क्योंकि फैमिली को टाइम चाहिए ना उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मैं अपना काम नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे प्रायोरिटी कैसे सेट करी मैंने, मैं अपना सुबह उठ के अपनी बुक्स पढ़ लेता हूँ, या मुझे जो एक्सरसाइज करना है या जो मुझे मेडिटेशन करना है मैं वो सुबह करता हूँ। ओके, इसके बाद फैमिली को टाइम जब चाहिए तो मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, तो 8:30 तक मैं फैमिली के साथ, बच्चे को पहले स्कूल भेजना है, उसको ट्यूशन भेजना है, फिर वाइफ के साथ वॉकिंग के लिए जाना है, आ गए उनके साथ अपना ब्रेकफास्ट किया, दैट इज क्लोज। ओके, फिर उसके बाद एवरीथिंग इज सॉर्टेड। ओके, तो जो डिस्कस करना है घर के लिए कुछ डिस्कस करना है तो मॉर्निंग वॉक में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इसके बाद ऑफिस का रहता है, तो 10 बजे ऑफिस आ गए तो फिर ऑफिस में, फिर घर का फोन नहीं आता है कि घर से कोई अच्छा ये लाना है वो लाना है। ओके, सो लाइक दिस इज हाउ यू टेक केयर ऑफ ऑल दिस। प्रायोरिटी डिसाइड कर ले कि मेरे क्या प्रायोरिटी है, इतना टाइम उनके लिए डेडिकेटेड है, सो रात को जाने के बाद फिर वापस उनके साथ में टाइम, सैटरडे so you are giving so sufficient time, so they are sorted. Yes sir. And sir, like इतना बड़ा स्टाफ है,
अगर आप एक एक इंडिविजुअली भी तो मिल नहीं सकता है. हाँ. सो आपने वहाँ पे SOPs कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर कि लाइक एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड इवन इफ यू आर हियर और नॉट? उसके लिए हमने सभी डिपार्टमेंट भी बना दिए हैं. ओके. और उनके डिपार्टमेंट्स के लीड्स हैं, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. कुछ डिपार्टमेंट मेरे पास भी है, कोई डिपार्टमेंट किसी और के पास है, इस तरह से. तो जब जिस डिपार्टमेंट में नीड होती है तो वो उस डिपार्टमेंट का पार्ट है और उसके डिपार्टमेंट के एक हेड है. अच्छा, दे मैनेज. हाँ, उनको कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझसे डिस्कस करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो इतने कैपेबल हो गए कि वो खुद सॉर्ट आउट कर लेते हैं. मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड सर जैसे तब मैंने पहले मेंशन करा सैचुरेटेड मार्केट है और वे आपने रिसेंटली कुछ ईयर्स पहले स्टार्ट करा है, बट स्टिल अभी जो कंपनीज वगैरह है रिस्पॉन्स काफी अच्छा आया है. सो मतलब इसमें एंट्री करना तो इजी है सर, बट इसमें आपने कैसे सरवाइव करा, क्योंकि एक न्यू स्टार्टअप और कंपनी को ग्रो करना थोड़ा सा टिपिकल जॉब है. सो हाउ यू जस्ट स्टार्टेड इनटू दैट? ट्रस्ट का बहुत फैक्टर है यहाँ पे. ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है और शायद इसी की वजह से हमको कोविड में बहुत सारों को प्रॉब्लम आई थी. ड्यूरेशन आपको याद होगा कि कोविड में जॉब जा रही थी, कंपनी सैलरीज नहीं कर पा रही थी. बट मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमने किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं काटी. नहीं हमने कोई डिडक्शन किया था, उनको फुल इवन दैट फेस. और जो शुरू से रूल है कि 30th को सैलरी ट्रांसफर होगी तो 30th को मंथ एंड पे सैलरी उनको कोविड में भी ट्रांसफर हुई थी. ओके. तो वहां पे भी नहीं हुआ एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अवर ट्रस्ट वर्दी क्लाइंट्स और हमारी टीम का सपोर्ट, क्योंकि जो ट्रस्ट बनाने में टीम का भी सपोर्ट रहता है. तो ट्रस्ट जहां पे रिलेशनशिप ट्रस्ट वर्दी हो जाती है तो वहां पे फिर आपके मुश्किल समय में फिर वो ट्रस्ट रिलेशनशिप जो है वही काम आती है. और देखिए कि अगर आपको पर्सनल कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपकी जो रिलेशनशिप होंगी क्लोज, जिनपे वो ट्रस्ट करते हैं, आप ट्रस्ट करते हो, वो आपको बुरे समय में साथ देंगे. ओके. अदरवाइज जो रेगुलर फन फ्रेंड होंगे वो चले जाएंगे. वो सर इनकमिंग एंड आउटगोइंग गोस ऑन. तो वो ट्रस्ट कैसे बनता होगा? वो ट्रस्ट बनता है जो हमने बनाया वो ट्रांसपेरेंसी से. Okay. हम टीम के साथ भी ट्रांसपेरेंट हैं कि कैसे काम कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ भी हम ट्रांसपेरेंट हैं, वर्क को लेके, टीम को लेके. हमारे हर क्लाइंट हमारे टीम मेंबर को जानते हैं कि किसके साथ मैं काम कर रहा हूँ. ऐसा नहीं कि टीम के लिए दिनेश पांचाल कुछ है. Okay. के लिए क्लाइंट लाइक यू मेक देम इंटरेक्ट. ओके. तो हमारे क्लाइंट्स हम उनके जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनको सबको जानते हैं. कुछ क्लाइंट्स आके मिलते भी हैं, यूएस से विजिट करते हैं कि हाँ हम टीम से मिलकर आते हैं, ऐसा भी होता है. ओके. तो ट्रस्ट वर्दी, और उसके लिए आपको सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी रखें अपनी रिलेशनशिप में, क्योंकि जो भी बिजनेस कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है. तो वर्क में, टीम के साथ में, डेडलाइंस के साथ में, फाइनेंशियल, तो सारी चीजें फिर सॉर्टेड. ओके. एंड सर इन द नेक्स्ट 10 years लाइक आपका विजन क्या है डेक्सबाइट को लेके, कि लाइक व्हाट इज योर नेक्स्ट विजन फॉर एंटायर टीम ऑल्सो? तो हमारा मेन विजन है कि हम सर्विस बेस से लेके साथ में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाएं. ओके. और हम कुछ इन हाउस प्रोडक्ट डेवलप भी कर रहे हैं. ओके. और अभी तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा प्रोडक्ट को, लेकिन हाँ हम प्रोडक्ट कर रहे हैं और अगले 2 साल में हम उस प्रोडक्ट में पर्टिकुलर में निश करने वाले हैं. ये जो हमारा प्लान है उस हिसाब से. और फिनटेक के लिए प्रोडक्ट है, क्योंकि हम फिनटेक में पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं और फिनटेक के ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं. ओके. तो और लेकिन हमारा गोल कभी भी ये नहीं है कि हम 500 लोगों की टीम बनाएं या क्या, लेकिन हमारा गोल ये है कि हमारी टीम ऐसी हो जहाँ पे कि सारे हंसी खुशी काम करें और किसी को भी ऑफिस आने में कोफ्त ना हो, इंजॉयमेंट हो. ये हमारा डेफिनेटली विलिंग टू वर्क. मंडे बोरिंग ना लगे, संडे ना लगे उनको कि संडे होता है तो अच्छा रहता. दे शुड फील गुड अबाउट वर्क और सभी प्राउड कर सकें जो मैं काम कर रहा हूँ और उसमें उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को प्राउड करें. यस सर. एंड सर एट लास्ट आई वांट अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर एनीवन हु वांट टू एंटर इनटू दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अरीना, और जिसे करियर में भी अगर वो चाहें तो इंजीनियरिंग करके इसी में जाना है, तो किन चीजों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए दैट विल हेल्प देम सक्सीड इन देयर करियर? इंजीनियरिंग इज बेसिकली टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी में जो जिस पर्टिकुलर स्ट्रीम में वो स्टडी कर रहा है उनको स्ट्रीम में अपनी एक्सपर्टीज होना चाहिए. सब्जेक्ट SME एक वर्ड है छोटा सा, SME, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. तो आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनिए, ऑटोमेटिकली आपके लिए चीजें हो जाएंगी. और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने के लिए किसी का वेट नहीं करना है कि कोई मुझे बताएगा तब मैं करूंगा. मोस्टली प्रॉब्लम ये है कि यूथ की
कि उसने मुझे बताया नहीं या वो टीचर ने अगर मेरे को कॉलेज में तो कभी बताया नहीं, हमको इसलिए हमने नहीं किया। ये मेरी लाइफ है, ये आपको समझना है कि ये मेरी लाइफ है, ये मेरा कैरियर है और इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होना है। ओके, सो आई नीड टू टेक डिसीजन फॉर माई कैरियर और जो मेरे एक्शन है उनके लिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बोला कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सुबह मैं जल्दी उठता हूँ और मैं वॉकिंग भी रहता हूँ, तो ये मेरा डिसीजन है। मैं शुगर नहीं खा रहा हूँ तो ये मेरा डिसीजन है कि मुझे फिट रहना है। और किसी का एक डिसीजन हो सकता है कि मैं जंक फूड, मैं पिज्जा को बहुत अच्छा एंजॉय करता है, वो बर्गर अच्छे एंजॉय करते हैं, कोल्ड कॉफी, उसके कोल्ड ड्रिंक उनका है कि भैया अच्छा मुझे वेट गेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिमिलरली जब एजुकेशन की बात आती है टेक्नोलॉजी में, तो आपको अपने सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट होना जरूरी है। अब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होने के लिए आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसको आप सीरियसली पढ़ें और जो उस पर एक्शन लीजिए। सिर्फ रेसिपी पढ़ने से, एक अगर यूट्यूब पे आपने कोई रेसिपी देख ली और बोले कि बहुत अच्छी रेसिपी है, या मैं आपको बोलूं कि अच्छा ये रसगुल्ला बहुत मीठा है और मैं खा रहा हूँ, आप कैसे खाएं? आपको कैसे पता कि वो मीठा है कि कड़वा है या खराब है? करेंगे नहीं जब तक टेस्ट नहीं लेंगे। टेस्ट लेने के लिए आपको खाना पड़ेगा। तो सिमिलरली एक्शन लेना पड़ेगा आपको। तो आप जो पढ़ रहे हैं कॉलेज में उस पर आप एक्शन लीजिए और उस एक्शन की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ओके, है ना? और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, एक्शन लेने में कई बार हम फेल भी होंगे, लेकिन उस फेलियर से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फेलियर ही आपके लिए सक्सेस स्टोरी। जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो जो फेलियर की स्टोरीज हैं वो आपके लिए एक स्टोरी बन जाएगी कि हाँ मैं इस तरह से सक्सेस हुआ, ये स्टेप्स में चाहिए। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। फेलियर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सक्सेस। बगैर फेलियर के सक्सेस नहीं मिलने वाली है। ओके, तो फेल होना जरूरी है, लेकिन फेल जल्दी हो जाइए। हाँ, उसमें टाइम मत लगाइए, उसमें डरिए मत। फेल होने से डरना नहीं है। ज्यादातर आज यूथ जो है, जो मुझे लगता है कि वो एक्शन नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं कि उनको एक्शन लेने में डर लग रहा है, बल्कि उनको रिजल्ट से डर लग रहा है कि वो फेल हो जाएंगे तो फैमिली वाले क्या बोलेंगे। यस सर, ये तो है। तो उनसे नहीं करना है, अपने को डरना है, क्योंकि फेल आप जो फैमिली वाले हैं या रिलेटिव्स हैं या दोस्त हैं, आप पास होंगे तो भी बोलेंगे, फेल हो जाएंगे तो भी बोलेंगे। उन पे फोकस नहीं करना है। मुझे रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, मुझे अपने एक्शन पे फोकस करना है। रिजल्ट ऑटोमेटिकली सही होगा अगर मेरे एक्शन सही डायरेक्शन में है। ओके, तो मुझे एक्शन पे फोकस करना है, रिजल्ट पे फोकस नहीं। एग्जाम में बच्चे डरते हैं। मेरा बेटा ऐसे ही हुआ था, डर रहा था टेस्ट देने जाने से, उसको लग रहा है बुखार आ रहा है, ये आ रहा है। और आप ये समझेंगे कि अगर कोई ऐसा कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। तो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट से डर रहा है। और रिजल्ट से क्यों डर रहा है वो? क्योंकि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं करी है। जब पढ़ाई करने की बात, तो वो मैंने समझाया उसको भी कि रिजल्ट से नहीं डरना। जो आपने मेहनत करी है तो आप सही कर लोगे, आपने मेहनत नहीं करी है तो आप फिर डर रहे हो। तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ पापा मैंने मेहनत नहीं करी थी, इसलिए मुझे डर लग रहा है। ओके, तो मैंने कि अब ये इस सबक सीखो कि अपने को समय पे मेहनत करना है। रिजल्ट तो अच्छा या बुरा आना ही आना है। आप एग्जाम दोगे तो भी रिजल्ट आएगा, एग्जाम नहीं दोगे तो भी आएगा, नहीं दोगे तो डेफिनेटली फेल हो जाएगा। ये वो तो श्योर है, वो श्योर है ना। लेकिन अगर आपने दिया और आपने सही लिखा और अपने दिमाग को शांत रख के याद किया, जितना पढ़ा था उतना सही लिखा, तो चांसेस है कि आप पास हो जाए। यस सर, आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा खुद ही से। अच्छा मैंने पिछले बार 15 स्कोर किया था तो मैं 20 उसको, अगर 0 रहूंगा तो मेरे को अगले बार भी रहेगा, क्या ठीक है नहीं देता हूँ। किसी भी चीज से अपियर नहीं होना या डरना और उसको छोड़ देना बहुत इजी काम है। और आज की जनरेशन मेरे ख्याल से ज्यादातर ये कर रहे हैं, ये नहीं आ रहा छोड़ दो, ये नहीं आ रहा छोड़ दो। लेकिन ये ग्रोथ का नहीं है साइन, ये बल्कि अपने खुद के कैरियर को डिस्ट्रॉय करने के साइन है कि छोड़ना। भगवान ने हमको इतनी सारी चीजें दी हैं और हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम सोच सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हमारे हाथ हैं, तो हम छोड़ें क्यों चीजों को? यस सर, एक्शन लें, जस्ट डू इट नाउ। Sir, so thank you so much for being on our show. It's a great learning experience for our entire community. Pleasure is mine. Thank you very much for inviting. And I think आप जो कर रहे हैं यूथ को एजुकेट करने के लिए, बिकॉज कॉलेज में एजुकेशन तो मिल रही है, लेकिन आप जिस तरह से प्रोफेशनल्स को ला रहे हैं अपने पॉडकास्ट में और उनसे जो उनकी लाइफ लर्निंग है या की लर्निंग्स हैं उनको आप स्प्रेड करने की जो यूथ को दे रहे हैं,
आई थिंक मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली वो अपने नॉलेज को देंगे। जैसे अगर कोई आपके आर्किटेक्ट हैं तो किसी को इंजीनियर बनना है बिल्डिंग बनाने के लिए, और आर्किटेक्ट अगर उस चीज के बारे में बारीकी बता रहा है अपने 20 साल के 25 साल के एक्सपीरियंस को, देन डेफिनेटली वो बुक से बहुत ज्यादा हुआ है। बुक नॉलेज बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कोई प्रैक्टिकल उस पर और ऐड कर देता है, सो दैट इज लाइक केक ऑन अ चेरी, काम करती है कि आपका नॉलेज है लेकिन आपको प्रैक्टिकली भी एक और गाइडेंस मिली है। सो congratulations for that and best of luck. Thank you so much, sir. Yeah. So guys, stay tuned. We'll be coming back with most powerful shows of Folks of India.